सो वी हैव अ माइंडसेट, एक बार मैं भी पढ़ लिख जाऊंगा, मैं भी जॉब करूँ। जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, दे कंट्रीब्यूट 70% इन द जीडीपीस। रियली? या बोलते हैं आपको अपने एक अफीम का नशा छोड़ना पड़ेगा और आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सेइंग, रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और सबसे पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? बायजूस ने कितना अच्छा बिजनेस किया, कहाँ गया, बट नॉन कंप्लायंसेस फेल्ड, आज जीरो। बिना कंप्लायंस के आपके बहुत सारे कई बार ऐसे चीज़ें आएगा, अगर आप लीगलाइज नहीं होगा कि आपके पास पैसा भी हो तो आप एक्शन नहीं ले सकते। आज के डेट में स्टार्टअप एक फैंसी वर्ड बन चुका है। हर कोई एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, हर कोई एक फैंसी कार्ड रख के को फाउंडर बनना चाहता है। योर आइडिया ऑफ बिजनेस, आपको क्या क्या ऐसे चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? Hi Deepak, welcome to the Open Talk Show. Thank you so much, Shine, for inviting me. You're welcome. तो My pleasure. सबसे पहले मुझे आप बताइए about you for the audience जो हमें देख रहे हैं, and then we move forward to the topic. Thank you so much. Myself Deepak Gulati, and I am a qualified company secretary and law graduate. I have done my master's in law as well. I am NIM certified, and I'll today help Shine in all the conversation, all the questions he has in his mind. And this way we'll make, hopefully I'll add knowledge. I'll try to help you people how you can, understand what the entrepreneurship ecosystem is. Okay, so you're part of the entrepreneurship. उसमें आप काम करते हो? Yeah, very rightly said, Shine. I was working for corporates, brands like ITC, Religare from last 14 years. And I am lastly handling the legal and secretary department. I have worked with startups, listed entities, and various corporates as a head as well as junior position in my earlier careers. Okay. So what I realized that how business works, what are the support system and which make business successful as well as unsuccessful. So I have gained the deep experience of understanding all the aspects that how a person can be a successful businessman. Great. So हम इसी बारे बात करेंगे कि पूरी डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा मैं. True. और हाँ, सबसे पहले तो आपके पास टोटल कितना how long you have work for? Like, yeah, I have a total experience of around 15 years, I'll say. That is my post qualification years. Post qualification I was into CS, and after being CS I have started my journey with all the corporates. I have worked with stock brokers, I have worked with startups like Car Dekho, Grip Invest. So across the various sectors, you can say I have worked with people, and this have helped me out to attain a deep knowledge of understanding of the businesses as well as the legal aspects. Okay, so मुझे थोड़ा आपकी चाइल्डहुड के बारे में जानना है, बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो. चाइल्डहुड जैसे कि आप आज LLB कर रहे हैं, CS का भी काम कर रहे हो, and you are having good knowledge about the investment as well. True. So entrepreneurship as well. Okay, so I want to know from the beginning mindset to till now कि उस टाइम आपका कैसे थे? Tell me about your childhood. True. See, the background of my family is I am from a very small town, Karnal, and my schooling was from convent school, St. Teresa's Convent School, Karnal itself. Then I graduated myself from Delhi University. I did my BCom, and I started my company secretaryship course, and I did my LLB, LLM as I earlier mentioned. Okay. But the journey was the background in the family set I was coming from. I am from a very middle background, and most of the people in my nearby or my family are a working class, majorly in banking sector. अच्छा. So we have a mindset, एक बार मैं भी पढ़ लिख जाऊंगा, मैं भी जॉब करूंगा. And with that note, I was working hard in my studies and establishing my career, doing a job. But a year back, I realized that if you are in a job, your growth is limited. And if you have planned to expand yourself, you have to come out from your comfort zone. बोलते हैं आपको अपने एक अफीम का नशा छोड़ना पड़ेगा और आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, because there is always a saying, risk is equal to reward. If you are ready, or you can say if you are preparing yourself for the risk, then you can obviously high chances that you can have a better reward. Right. But risk has to be calculated risk. हमें सब कुछ दांव पे नहीं लगाना. You have to check balance.
जॉब भी जरूरी था बिकॉज यू माइट हैव सम फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। सॉरी, डू यू थिंक कि हमें शुरुआत में थोड़ा जॉब करना चाहिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर हो चाहे एज अ पर्सन हो? ट्रू, बिकॉज जॉब्स आपको बहुत सारी लर्निंग्स देता है। जॉब आपको वहाँ पे जब आप जॉब कर रहे होते हो, हम बोलते हैं जॉब सिर्फ, जॉब को अगर मैं दूसरे टर्म से बोलूँ, इट्स लाइक लर्निंग एंड अर्निंग। यू आर लर्निंग एज वेल एज यू अर्निंग, एंड दैट ओनली मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद पीपल, also help you understand what business is, what commercial mindset is, because books आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट सिखाता है, बट लाइफ आपको जिंदगी सिखाती है। वो आपको जॉब से सीखने को मिलता है, वो आपसे एक सराउंडिंग से सीखने को मिलता है, वो आपको लोगों से डील करने को सीखने को मिलता है। एंड दैट्स व्हाई आई से कि इवन इफ यू आर वेरी वेल्दी पर्सन एंड बॉर्न विद अ वेरी गोल्डन स्पून, देन ऑल्सो आपको अगर सही मायने में धक्के खाने हैं तो यू शुड ऑल्सो फर्स्ट ट्राई फ्यू ईयर्स फॉर जॉब, एंड एटलीस्ट 2 साल, एटलीस्ट। हाँ, मतलब साल डिपेंड करते हैं कि किस नेचर ऑफ बिजनेस में हो आप, क्या चीज़ें सीखना चाहते हो। बिकॉज हमारी लीगल फील्ड में समटाइम आपको बहुत ज़्यादा लोगों से सीखना पड़ता है चीज़ों को, तो इट मे टेक सम टाइम एक्स्ट्रा। और जो एक प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेसेस होते हैं जो सर्विस सेक्टर नहीं होते, वहाँ पे शायद थोड़ा सा कम टाइम आपको जॉब में सीखने को जरूरत हो। बट ओवरऑल जॉब इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट, बट ऑब्वियसली इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, there's nothing like that. You are your own boss. Okay. So सबसे पहले मुझे ये बताओ आप, एंटरप्रेन्योर्स होते क्या है, मतलब what exactly that? Very true, very well. I'll say Sain, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि एंटरप्रेन्योर होते क्या है। क्या ये भगवान बना के भेजते हैं एंटरप्रेन्योर? Why I ask this question because if you see nowadays there is so many new business startup getting failed. Okay, so I just wanted to give you clarify so the entrepreneur क्या होता है, ये हमारे लिए, ये सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। Okay, so tell me about that. True. एंटरप्रेन्योर अगर हम बिल्कुल लेमन भाषा में बात करें या बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें, हम एक बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बट अगर इसके बारे में हम और जाने तो कुछ मिथ्स हैं। वो मिथ्स ये हैं कि एक अमीर आदमी ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर ऊपर से बन के आते हैं। एंटरप्रेन्योर को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। ये कुछ सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को लेके मिथ्स हैं जो कि अब कुछ टाइम से काफी कम होने लग गए हैं, क्योंकि हमने मार्केट में ऐसे ऐसे लोगों का एग्जांपल देखा है जो कुछ इयर्स पहले कुछ भी नहीं थे, एंड दे आर नाउ यूनिकॉर्न्स वी से इन आवर वर्ल्ड, दोज हु आर नाउ रनिंग $1 million कंपनी एंड हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, एक ब्रांड बना चुके हैं बहुत बड़े बड़े। to them we call unicorn. Okay. And वो एक बहुत बेसिक बैकग्राउंड के लोग थे। कुछ साल पहले लोग उनको जानते भी नहीं थे। Right. तो एक चीज तो क्लियर है कि if you have some business ideas and you want to grow that business idea, पैसे की जरूरत होती है, but that is not the only thing you have. And this help you make a good entrepreneur. और एंटरप्रेन्योर जरूरी क्यों है, अगर आप अगला क्वेश्चन पूछो तो why entrepreneurs are important in country? Yeah, why is important? Why it is important? I think obviously this is the biggest thing. It's important for the people which is coming, the generations. True. Okay, उनके लिए स्पेशली नई बिजनेस क्रिएट करना फॉर सोसाइटी के लिए कुछ हम नई चीजें क्रिएट करना होता है। बिकॉज जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, देयर इज अ डाटा which says कि MSME which we call small medium enterprises, जो छोटे छोटे businesses होते हैं, they contribute 70% in the GDPs. Really? Yeah, their contribution in the employment is the highest contribution. Okay. That's why government has created a lot of agencies which gives you a certificate of MSME. And I'll highlight few of the provisions that if you are dealing with the MSME, government has given few protections. What are those? One of them is if you are taking some goods from MSME which are on credit, you have to pay them back within 45 days. And if you are not going to pay, your life is going to be held. Achha. Yes, government is giving you protection. Government gives you certificate of MSME. Government says that if some big giants are dealing with you, they cannot exploit you. So वो कल्चर क्रिएट हुआ है थोड़े टाइम से, और उस कल्चर ने हेल्प किया है छोटी छोटी और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। और आप देख रहे हो कि स्टार्टअप्स आज की डेट में, आप शार्क टैंक देखते होगे, स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कोई एक बेकरी का बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप्स आ रहे हैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहा है, और आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड्स को कम्पीट कर रहे हैं वो, बट किसी टाइम पे वो एक MSME थे।
एंड दूसरा गवर्नमेंट जो नए बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देती है स्टार्टअप्स का। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप स्टार्टअप्स के सर्टिफिकेट ले सकते हो और आपके पास एक बार जब स्टार्टअप का सर्टिफिकेट आ जाता है आपको और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें एक आता है इनकम टैक्स के बेनिफिट्स, जो कि किसी भी टैक्सेशन प्रोविजन में हेल्प करता है अच्छी प्लानिंग के लिए। बिकॉज इफ यू हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ टैक्सेशन दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर डिसीजंस वाइजली। हम टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। और टैक्स इवेजन और प्लानिंग में बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट ऑल्सो वांट आप प्लानिंग अच्छी करो, बट इवेजन इज समथिंग डिफरेंट। आपने कई सारे कंपनीज के साथ काम किया, इज दैट मतलब नई कंपनी है? हाँ, मैंने जिन कंपनीज के साथ किया कई तो बहुत ओल्ड एस्टेब्लिश कंपनी सी, मतलब आपने जैसे बताया कि आपने स्टार्टअप के साथ भी काम किया है, राइट? हाँ। तो व्हाट इज सी द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज सी द अदर, मतलब आपको क्या समझ आया कि क्या प्रॉब्लम्स मेन आती है? ट्रू, वेरी नाइस क्वेश्चन आर्टिकुलेटेड। आई विल से मैंने सही में बड़े बिग ब्रांड्स के साथ भी काम किया हुआ है, लाइक ITC, इट्स अ 100 years ओल्ड कंपनी और बहुत डिवीजन ऑफ वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीइंग इनटू लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट यू हैव टू ऑलवेज ऑन योर टोज, क्योंकि वो एक लिस्टेड एंटिटी है। विल टॉक ऑन दिस टॉपिक एज वेल एज लिस्टेड क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होता है, विल कवर दोस टॉपिक्स एज वेल। बट एक लिस्टेड एंटिटी है, द मोमेंट वी से लिस्टेड एंटिटी है उस पर बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की एक नज़र बनी हुई है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस होते हैं, वो हमें डिस्क्लोजर्स के रूप में उनको बताना पड़ता है, खुद जाके बताना पड़ता है, दीज आर थिंग्स हैपनिंग इन माय कंपनी। तो उसमें जब आपके ऊपर डिस्क्लोजर और कंप्लायंसेस का एक स्ट्रॉन्ग आप कह लो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई भी नॉन कंप्लायंसेस ना हो, क्योंकि एवरी नॉन कंप्लायंसेस कम आउट विद अ ह्यूज पेनल्टीज एंड ह्यूज पेनल्टीज इटसेल्फ इज अ न्यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेट मी हैव अ क्वेश्चन हियर। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ओके, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और सबसे पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? वेरी गुड। आई विल से कि आप देख रहे हो आज की डेट में स्टार्टअप एक फैंसी वर्ड बन चुका है। हर कोई एक नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, हर कोई एक फैंसी कार्ड रख के को फाउंडर बनना चाहता है, राइट? है ना? और स्पेशली यंग जनरेशन, जब से ये पीपल आर मेकिंग प्रोफाइल दैट यू नो founder of this, yeah, but the reality of the value of the management they doesn't have. True. तो उनको अभी पता ही नहीं है कि founders come with a huge responsibilities. Yeah. To become a founder is not easy. I think you should mention the founder when you're having at least 50 employees. Can't say like this. Say like this. It will be difficult to articulate any criteria. Okay. Founder कौन होता है? फाउंडर वो इंसान होता है जिसने एक बिजनेस आइडिया सोचा होता है। ठीक है। उस बिजनेस आइडिया में या तो वो खुद इन्वेस्ट करे या किसी से इन्वेस्टमेंट मांगे या लोन ले। इवन जो साइकिल का इन्वेंशन हुआ था वो भी इन्वेंशन करने वाला एक फाउंडर था। राइट। उसने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसने कोई आइडिया डिजाइन किया, उसको मार्केट में उतारा और वो फाउंडर बन गया। फाउंडर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फाउंडर्स तो ऐसे हम बोलते हैं अपनी, अगर हम लेमन भाषा में बात करें तो उसकी बैंड बजी रहती है, और तब तो ज्यादा बजी रहती है उसकी बैंड जब उसने पैसा मार्केट से उठा रखा हो और उसने नीचे एम्प्लॉयज रखे हो। उसको ये भी देखना है कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे दूंगा, उसको ये भी देखना है कि मैं मार्केट को कैप्चर कैसे करूंगा, और उसको सबसे ज्यादा प्रेशर होता है इन्वेस्टर्स का कि मैं उनको रिटर्न्स कैसे दूंगा। तो फाउंडर बनना, एक वो कार्ड बनाना बहुत आसान है, बट उसके एक्चुअल रोल को प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ आपकी उसमें क्या क्या रोल होता है। हाँ। एक फाउंडर, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव आइडिया ऑफ बिजनेस, आपको क्या क्या ऐसे चीजों पे सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? अगर मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कोई हमारे ऑडियंस में कोई ऐसा कुछ काम है उनको करना चाहता है, ओके, इट्स नॉट अबाउट द फाउंडर ओनली, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। सो आई जस्ट वांट टू नो द मैनेजमेंट, हाउ इट्स स्टार्टेड। ठीक, एक बेसिक मैनेजमेंट कैसे स्टार्ट अच्छा बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं। ट्रू। मैं कहूँगा इसमें हमें कुछ चीज़ों को अब टेक्निकली समझना पड़ेगा कि हम बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। हमारे इंडिया में हमें अलाउ किया गया है, आप कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप 1% कंपनी बना के बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप LLP बना के बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब होता क्या है, इन चारों के पांचों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एग्जांपल के लिए प्रोप्राइटर में आप 100% अपने मालिक को 100% आपको टैक्स देना, 100% प्रॉफिट आपका है। पर जब हम कंपनी के फॉर्मेट में बात करते हैं, कंपनी में
आपकी इक्विटी होती है, आपकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज होती है, आपको कुछ लोगों के साथ मिलके काम करना होता है, अपने प्रॉफिट्स को उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, करना भी पड़ सकता है, करना ना भी पड़े, वो बोर्ड की पावर होती है, बट वो एक लीगल स्ट्रक्चर है, उसके कुछ कंप्लायंसेस हैं, उनके कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, जो कि कई बार जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको इसकी नॉलेज नहीं होती। तो मैं आपकी ऑडियंस को सबको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका एंटिटी टाइप क्या हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, या कंपनी फॉर्मेट हो, या एलएलपी हो, वो आप पहले कंसल्ट करो। किसी भी क्वालिफाइड सीएस से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से, जिनका काम है ये, एक प्रोफेशनल से जाके एडवाइस लो, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में स्टार्टअप्स के फेलियर्स का। द मोर टेक्निकल वर्ड इज स्ट्रक्चरिंग। अगर आपकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं है, इट मे लीड अप इनटू लॉट ऑफ ट्रबल्स, और आप you lost your identities and may then shuffle your identities and lost up in ending losses, and it's close before it started. Right. Even I have saw one of my friend open the agency which is that I learned कि आपके पास जो भी आप अगर business plan करते हो ना, you have to understand every consequences of your business, every single side. He knows he want to start a business, okay, और उन्होंने ऑफिस खोल लिया, okay, क्लाइंट भी है उसके पास। When they have a नए क्लाइंट है, फिर उनकी नई रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कंपनी का एक, जब आप किसी कंपनी से बिजनेस ले रहे हो या बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ, उनका एक कॉर्पोरेट का सिस्टम अलग होता है। They want to onboard you, okay, and you have to onboard them as well, okay. आपकी जो पैसा है फाइनेंशियल वो ट्रांसफर होता है, देर से आपके पास ऐसे अकाउंट होना चाहिए जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो ट्रांसफर होता है, राइट, करंट अकाउंट। तो वो सारी चीज़ें उनको पास नहीं पता था। ही जस्ट स्टार्टेड, ही थॉट कि मेरे पास स्किल है, ओके, आई स्टार्टेड बिजनेस एंड मुझे इसमें पैसा कमाना है। पर अब उसको वो चीज़ करते हुए कोई छोटा मोटा दिक्कत आया, 1 महीना लग गया, उसमें क्या आगे 1 महीना का उसका बिजनेस नष्ट हुआ, क्योंकि वो उसको पैसा काम करके दिया या अपने प्रोडक्ट दे दिया जो आपका प्रोडक्ट है, लेकिन सामने से वो आपका फाइनेंस डिलीवरी नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर हैविंग बेसिक चीजें जो आपने पहले से ही क्लियर नहीं किया, राइट। सो ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं स्टार्टअप पे, ओके, जो काफी बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। I saw the company that they have like 200 crore something, 300 crore उन्होंने मार्केट में डिलीवर्ड कराए, ओके, but they thought कि once we delivered we will collect that, but reality of that कि उन्होंने सिर्फ half of amount भी collect नहीं कर पाया because वहाँ पे कोई lag, right? So that I understand. ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। So उस केस में मुझे ये समझ आया, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एवरी सिंगल थिंग, ओके, यू हैव टू विजुअलाइज एवरी सिंगल थिंग when your product is going, when you're paying someone or you're getting money from someone, okay, what will be the happen, every single point you should be known, then I think you should jump to business. और उस केस में उसके बाद होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वो जो आता है कि हमारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट पे कहीं पे बिहेवियर इश्यूज होता है, लोगों के बिहेवियर, वो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। उसके इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास लीगल सिस्टम होना चाहिए। इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस, ओके, व्हेनेवर आई स्टार्ट अ बिजनेस, मैं सबसे पहला जो होगा मेरा कंप्लायंस, दैट शुड बी 100% होना चाहिए। बिना कंप्लायंस के आपके बहुत सारे कई बार ऐसे चीजें आएगा, अगर आप लीगलाइज नहीं होगा कि आपके पास पैसा भी हो तो आप एक्शन नहीं ले सकते। अगर कहीं पे मान लो आपका पैसा फंस गया, ओके, आपके पास प्रॉपर लीगल कंप्लायंस होगा हर चीजों के लिए, ओके, और अगर होता है तो शायद आपके पास एक चांसेस होता है। True. I'll take this as a question कि importance of compliances क्या है। Right. There are many organizations which failed because of not having proper compliances. और इंडिया में there are many authorities जिनमें इतने चेंजेस आते रहते हैं कि आप सोलली उनको मैनेज नहीं कर सकते। हम इंडिया में बात करते हैं ईज ऑफ कंप्लायंसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट के बहुत सारे आप कह लो एजेंडाज हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात करते हैं, बट क्या ग्राउंड लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरी सोसाइटी के लिए क्वेश्चन है, पूरे इकोसिस्टम के लिए क्वेश्चन है। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी इंडिया में है? मैं कहूँगा अभी हमने वो स्टेप्स तो ले लिए हैं, बट उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। आपको इनकम टैक्स का भी देखना है, आपको कंपनीज एक्ट का भी देखना है, आपको अपने स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एक्ट्स का भी देखना है। से फॉर एग्जांपल आप टेलीकॉम इंडस्ट्री हो तो आपके ऊपर टेलीकॉम रेगुलेशंस के अलग से गाइडलाइंस लगती है, आप मेडिकल इंडस्ट्रीज में हो आपके मेडिकल की अलग से गाइडलाइंस लगती है। तो ये सारी चीजों को संभाल पाना
सिंगल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। तभी मैं बोलता हूँ कि आप सर्विसेज लो प्रोफेशनल्स की। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। Either you can hire a person or you can take a service. You can have a consultancies ना। Nobody is going to say, स्टार्टअप्स के साथ दिक्कत ये होती है वो इनिशियल कॉस्ट सेव करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास भी शायद अभी उतने फंड्स नहीं है। तो मार्केट में कंसल्टेंट्स हैं, आप सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी लो, फेस भी करो, है ना। आपको क्या स्ट्रक्चर बनाना है, से फॉर एग्जांपल आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट आजकल बड़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं, ये भी हैं, बट आई विल से गो एंड हैव विजिट टू सम प्रोफेशनल बिकॉज दे विल टेल यू फ्यू थिंग्स एक्स्ट्रा विच यू हैव टू टेक केयर, है ना। और उससे क्या होगा, एक आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाएगा, आपको प्लस माइनस पता होंगे। नाउ यू आर श्योर कि अब जो मैं डिसीजन ले रहा हूं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। और जब एक बार थोड़ा प्रिपेयर्ड आप हिट करते हो चीजों को, देन इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ योर सक्सेस। तो आई विल ऑलवेज से we help people to get arrange some finances. Okay. We help people to better structure their companies. We help people how they can scale up their companies. How they can manage the legal and compliance part by associating with some professionals. Okay. So that's very important because मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने सारे सेशंस में, व्हेनेवर आई टेक सेशन समवेयर इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंसेस को समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। विजुअलाइज करो जब दिल्ली एनसीआर में एक रेड लाइट खराब हो जाती है, नॉन कंप्लायंस है, रेड लाइट चलनी बंद हो गई, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। राइट, सबको जल्दी है, कोई भी नहीं पहुंच पा रहा, एवरीबडी वांट्स टू रीच, राइट, दैट इज, यही एक सर्कल है जिसमें कंपनियां फंस जाती हैं। आपने कंप्लायंसेस ऑफ करी, नाउ यू आर ट्रैप। हर कोई भागना चाह रहा है, यू वांट सक्सेस, एम्प्लॉइज भी, सब कुछ नहीं हो पा रहा, एवरीबॉडी इज स्ट्रक्ड। तो अब कंप्लायंसेस एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आई एम टेकिंग इट ऑन योर बिहाफ। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि कंप्लायंसेस तो कॉस्ट होती हैं, ये तो खर्चा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो एक इनकम है बट कंप्लायंसेस एक खर्चा है। ऐसा एक माइंडसेट है लोगों का मार्केट में, बीइंग इनटू लीगल प्रोफेशन, आई फील दैट। पर ये आपके लिए भी रेड लाइट पे रुकना एक खर्चा है, बिकॉज यू हैव टू टर्न ऑन योर कार, यू हैव टू वेट, योर टाइम कॉस्ट, योर पेट्रोल कॉस्ट, योर एफर्ट, योर एनर्जी, एवरीथिंग इज स्लाइटली ऑन होल्ड, और आई कैन से इट्स वेस्टेड। बट जब नहीं होती वो लाइट, तब भी तो ज्यादा वेस्टेज हो रही होती है, ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं आप, ज्यादा एंग्जाइटीज हो रही होती हैं आपको, आप ज्यादा परेशान हो रहे होते हो। तो कंप्लायंसेस कहना कि ये एक किस्म से कॉस्ट है या प्योरली एक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट है, ये सही नहीं है आंसर। कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एक देश को चलाने के लिए, किसी भी एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी लीगल सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए लीगल और कंप्लायंस का होना अच्छा बहुत जरूरी है। और हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं जिन्होंने कंप्लायंस को थोड़ा सा लाइटली लिया है, और ऑर्गेनाइजेशन उनको इतना हिट हार्ट किया है कि चीज़ें मुश्किल में चली जाती है, पूरा का पूरा बिजनेस टेक मुश्किल पे चला जाता है। और पीछे अगर अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ब्यूटीफुल एग्जांपल था फ्यू मंथ्स बैक, और आई कैन से फ्यू अबाउट एन ईयर बैक, पेटीएम का। पेटीएम में कुछ नॉन कंप्लायंसेस मिले थे, ऑल्दो आरबीआई ने उसको बाद में ठीक कर दिया। शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी वाज 800, and the moment RBI come out with some non-compliances or say that there are some non-compliances on suspicious itself, share price reduced to 50% and it was somewhere around 200, 300, 400. लोगों को ऐसा लगता था कि पेटीएम तो अब बंद हो जाएगा, ये बैंकरप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस, आरबीआई उसके ऊपर एक आरबीआई का लाइसेंस है, अगर आरबीआई का लाइसेंस चला गया, बिजनेस टेक पे आ जाएगा, पूरे का पूरा एम्प्लॉइज सबके सब स्टेक पे आ जाएंगे। तो कंप्लायंसेस इतनी इंपॉर्टेंट है आपका। और उन ऐसे एग्जाम्पल्स के बाद लोगों को समझ भी आता है, एंटरप्रेन्योर्स को समझ भी आता है कि कंप्लायंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, लीगल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट करते हैं हर एक चीज को। अगर ये सिस्टम ना हो तो आप दूसरे जाके क्लेम भी नहीं ले पाओगे जो आपका राइटफुल क्लेम है। तो व्हाट आई फील कि कोई भी आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन आप डिसीजन ले रहे हो बिजनेस प्लान का, एक अच्छे कंप्लायंस ऑफिसर से आप मिलो। मार्केट में जो भी आपके आसपास जो ऐसी एडवाइजेस देते हैं, जो स्ट्रक्चरिंग करते हैं, जो हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में, उनके साथ टच में रहना, उनकी फीसेस और कॉस्ट पे करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अनस्ट्रक्चर्ड चलोगे, आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा एंड यू मे लैंड अप इन सम ट्रबल्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके, मुझे आप ये बताओ, जैसे कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, उनके पास प्रोडक्ट है, वो बिजनेस कर रहा है, अगर या किसी के पास ऐसा है कि उनके पास आइडिया है, अच्छा आइडिया बिजनेस के लिए, और उनको अगर कोई
इन्वेस्टर ढूंढना है, ओके, जहाँ से फाइनेंस लेके अपना बिजनेस कर सके, तो ऐसा उनके पास कैसे उनको सोर्स मिले और हाउ दे कैन रीच? आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि डे इन एंड डे आउट हम यही फेस करते हैं। हमारे पास लोग स्ट्रक्चर बनवाने आते हैं, वो कहते हैं देखो मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे को इन्वेस्टर कैसे मिलेगा? राइट। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस में कैपिटल तो चाहिए, अगर आपका प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस है, ट्रेड रिलेटेड बिजनेस है। राइट। फंड अरेंज करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टर्स मीट करनी पड़ती हैं, और दिस कम्स विद नेटवर्किंग। राइट। तो अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल से आप मिलोगे, जैसे आप अगर हमसे मिलते हो, तो हमारा एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, जो आपके बिजनेस आइडिया पसंद आने पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां तक पहुंचने में भी आपको कुछ कई बार ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, कई सारी रिसर्च देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। और वहां पे कई बार बहुत डिटेल प्रोफाइल स्क्रूटनीज होती हैं, जो आपको फर्स्ट लेवल से ही बाहर कर देते हैं, आपको प्लेटफॉर्म तक भी नहीं पहुंचने देते। तो फिर अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए किसी प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी, किसी कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ेगा, जो कि अच्छे सोर्सेज में, जैसे हमारे पास एक NBFCs हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास मर्चेंट बैंकर्स हैं, हमारे पास RTAs हैं, जो हेल्प करते हैं बिजनेस को स्केल अप करने में, मॉनेटरी साइड से, फाइनेंशियल साइड से। ओके। तो इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए क्या क्या मतलब सबसे अच्छा होना चाहिए आपके आइडिया, बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया में दम होना चाहिए। अब कई बार आजकल यंग जनरेशन सोचती है मैं कुछ एकदम सुपरस्टिचुअल सा सोच लूंगा, या एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोच लूंगा, तो एकदम बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आइडिया होना एक बात है, और आइडिया की एग्जीक्यूशन होना एक अदर बात है। तो आपको दोनों का मिक्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं आइडिया को पिच करना। आप अपने आइडिया को पिच कैसे करते हो? इन्वेस्टर मीट्स कई बार स्टेट ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं, बहुत सारे बिजनेस फोरम्स में भी होती हैं, और आपके पर्सनल नेटवर्क में भी हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ एक बार सोचना है कि मैं फंड्स और कहां से अरेंज कर सकता हूँ। नहीं तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से भी ले सकते हो बोरिंग। अगर आपके आइडिया में अच्छा दम है तो ऑब्वियसली पीपल विल लव इन्वेस्टिंग यू। या आई थिंक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर के फाउंडर है, इवन बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि उनके पास एक आइडिया है, पहले उन्होंने काम किया थोड़ा, इट्स वर्किंग गुड, ओके, देन कम टू द राइट पीपल who have money, okay, and let them know कि this is my idea and this is can be reached from there to there and उसमें उनको एक अच्छा बिजनेस बन जाता है। हाँ, उसमें मिल सकता है। सामने वाला अब ये देखेगा, इन्वेस्टर यही देखता है कि इट इज गुड। और जो इन्वेस्टर, मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कैसे करता है? इन्वेस्टर आपको ही क्यों पैसे देना चाह रहा है, या ऐसे रिस्की वेंचर्स में पैसा क्यों लगा रहा है? वो चाहे तो FD में पैसा डाल दे, वो चाहे तो प्रॉपर्टी में पैसा लगा ले, वो चाहे तो शेयर मार्केट में पैसा डाल दे। ऑल्दो शेयर मार्केट इज नॉट गोइंग गुड दीस डेज, बट उसके पास भी अदर रेवेन्यूज हैं। वो आप में पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि उसको पता है यहाँ पे रिस्क के साथ रिवॉर्ड मैच करेगा, जो हमने शुरू में बात भी करी थी। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो, रिस्क हैज टू बी बैलेंस विद द रिवॉर्ड। उसको पता है ये वेंचर अभी निच स्टेज पे है, यानी कि अगर ये आइडिया चल गया तो मेरा जो पैसा है वो 1x 2x 3x नहीं, वो 10x या 100x भी ग्रो कर सकता है। यही उसको मोटिवेट करता है आपके रिस्की वेंचर में पैसा लगाने के लिए। और बहुत बार ऐसा देखा भी गया, वो आइडियाज फ्लरिश कर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसके माइंड में क्या होता है, वो आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ पैसा नहीं लगाता, वो 10 और जगह भी पैसा लगाता है, क्योंकि वो अपने एक्स को डाइवर्सिफाई करता है, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, अपने पोर्टफोलियो को स्कैटर्ड करता है, ताकि वो ये जानता है, उसका एक्सपीरियंस भी बोलता है और डाटा भी बोलता है कि 10 में से 8 फेल होंगे ही होंगे। अच्छा, यस। और वो जो 2 चलेंगे वो इतने चल जाएंगे कि ये लॉसेस भी कुछ नहीं है। तो ये माइंडसेट है। इसी माइंडसेट से वो छोटे छोटे फंड्स अपने एग्स के, अगर उसके पास 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ एक को नहीं दे देता, या जिसके पास 1000 करोड़ है वो 1000 एक को नहीं देता। इट डिपेंडिंग ऑन द एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर्स एज वेल। तो वो अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई हमेशा ही करते हैं। अब उसने आपके फंड्स में पैसा लगा दिया, आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, लगा तो दिया, वो निकालेगा कैसे? एग्जैक्टली, राइट। लगा तो दिया, अब निकालेगा कैसे? और आप देखोगे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लॉसेस का। जितने स्टार्टअप्स हैं लॉसेस में रन कर रहे हैं मेजरली। एक मैंने एक बात सुनी थी, लोग इन्वेस्टमेंट ऐसे बिजनेस बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन दे डू इन्वेस्टमेंट, दे जस्ट क्विटिंग। यस, ऐसा भी होता है। सॉरी, कम अप अगेन। मतलब बिजनेस बनाया मैंने, ओके, बिजनेस कर रहा हूँ, और सडनली कुछ ऐसे अपने बिजनेस में दिखा दिया,
लॉस वगैरह, क्योंकि मेरे को इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा मिल गया। ट्रू, ऐसा भी होता है। कई लोग बिजनेस में लॉसेस इसलिए दिखाते हैं बिकॉज हमारे इंडिया में एक टैक्सेशन प्रोविजंस हैं जिसमें कहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स देना है, लॉसेस पर टैक्स नहीं होता। तो उसको करने के लिए भी कई बार बिजनेसेस ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि ठीक नहीं है और उसमें लॉसेस को बुक कर लेते हैं और टैक्सेशन प्रोविजन यानी कि एक फ्लैट 30% का अगर टैक्स है तो वो बचा सकते हैं। बट अगर हम बात करें नॉर्मल सिनेरियोज की, एक ऑनेस्ट कंपनी की जिसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है, वो आप देखोगे जितने भी अभी अर्ली स्टार्टअप्स हैं, चाहे बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, जोमेटो तक भी इस लास्ट ईयर प्रॉफिट में आया, नहीं तो जोमेटो भी लॉस में था। लॉस वाली कंपनी में लोग पैसा क्यों लगा देते हैं? ये सबका सवाल हो सकता है। क्या मेरी कंपनी लॉस है उसमें भी क्या मेरे को इन्वेस्टर पैसा दे देगा? आंसर इज यस, क्योंकि आजकल जो बिजनेस सिनेरियोज हैं वो प्रॉफिट मॉडल्स पे नहीं चल रहे, फिर आजकल चल रहा है रेवेन्यू मॉडल पे। राइट। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज योर मार्केट रीच, रेवेन्यू इज योर सेल्स मार्केट शेयर, और वो इनिशियल स्टेज पे हम मान के चलते हैं हैवी होती है। से फॉर एग्जांपल मैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच करके 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं और मैं उसके बाद एड्स रन कर रहा हूं, मैं न्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी एक्विजिशन कॉस्ट अगर लगा रहा हूं हो सकती है 15 रुपए हो, तो मेरा अभी आज नुकसान हो रहा है। बट कल को जब मेरी मार्केट रीच बढ़ जाएगी या जब मेरा दूसरा कस्टमर दोबारा से रिपीट करेगा मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होती जाएगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अभी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट मॉडल पे ना कर करके रेवेन्यू मॉडल पे इन्वेस्ट करता है। तो ये सिनेरियो में इन्वेस्टर्स से पैसा मिल जाना आज के डेट में थोड़ा सा ईजी है। बीच में इंडिया में थोड़े टाइम के लिए फंडिंग राउंड्स काफी कम हो गए थे, बट अगेन अब थोड़ा सा फंडिंग राउंड शुरू हो चुके हैं और वी हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स विद अस। तो कोई भी बिजनेस आइडिया किसी को लगता है दे कैन लेट अस नो, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे अगर कोई हेल्प कर सकते होंगे तो आपके माध्यम से, आपके ऑडियंस के माध्यम से जरूर कोशिश करेंगे कि अगर आपका आइडिया है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है, तो इन्वेस्टर्स आपको इन्वेस्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे, दिलवा देंगे। ओके, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट? लाइक प्रोसेस इज वेरी सिंपल, वी हैव टू हैव सम कनेक्ट्स। मतलब what's the term? Term is you have to pitch your product, pitch yourself, market yourself, and that's only key to success of having investors. Because investor भी तो इंसान है ना, उसको आपने कैसे गाइड किया, कैसे नंबर्स दिए। कई बार हम सिर्फ प्रोडक्ट पे पैसा नहीं लगाते, हम इंसान पे पैसा लगवाते हैं। ओके, इसके बीच में भी कंप्लाइंस होते हैं अलग? इसके बीच में हाँ कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं एंड दे एंड अप इन डिस्प्यूट्स। जैसे कि नए नए दोस्त यार एक स्टार्टअप खोलते हैं और उनको लगता है सब कुछ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। एंड शाइन आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम्स पता है कब आती हैं? जब पैसा आ जाता है। जब हम स्टार्ट करते हैं लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि किसी के पास कुछ होता ही नहीं लड़ने के लिए। लड़े किस चीज के लिए? सही बात, लड़ाई ही नहीं है। अब बिजनेस ग्रो कर रहा है, अब पैसे आ रहे हैं, अब उसको लेके कौन जाए? इन्वेस्टर को दे, फाउंडर्स को दे, दोस्त आपस में बांटे हैं। There comes a role कि आपने फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग रखा था, आपने क्या कोई एग्रीमेंट साइन किया था? क्योंकि उस वक्त आपको लगता है यार दोस्ती में क्या एग्रीमेंट साइन करें, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। आपको लगता है दोस्ती में क्या एग्रीमेंट साइन करें, जबकि अगर आपकी दोस्ती फेयर थी तो आप उस वक्त टर्म्स एग्री करते और वो टर्म्स आपको हेल्प करती आपकी दोस्ती को भी मेंटेन करने के लिए और आपके बिजनेस एक्यूमेंट बनने के लिए भी। तो जो लोग ये चीजें मिस कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप्स में एक फाउंडर्स एग्रीमेंट होता है, आधी दुनिया नहीं करती है फाउंडर्स एग्रीमेंट, कि आपस में फाउंडर्स के टर्म्स क्या है, किसका कितना शेयर है, किसका कितना प्रॉफिट है, किसके कितने लॉसेस हैं, कितने एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम SHAs, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट्स। ये अपने आप में इतने कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स है कि आप बिना प्रोफेशनल के ये सब नहीं कर पाओगे। एंड हियर वी कैन हेल्प स्टार्टअप्स have an organized structure, legal structure, so that we should be, if we want peace, we should be prepared for war. हमें तैयारी रखनी चाहिए कि अगर हमारे बीच में कुछ टर्म्स खराब हो जाती हैं तो how we are going to resolve them. और कई बार वो टर्म्स जब रिटर्न होती है, it helps in easy resolution. एंड कई बार वो छोटा सा पॉइंट भी इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंड यू हैव टू गो टू कोर्ट्स एंड यू नो व्हाट्स अ रियल टर्म सिनेरियो, कोर्ट्स में कैसे जस्टिस मिल रहा है। यू विल वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड एंड अप इन लॉस्टिंग योर मनी, ह्यूज टाइम, मे बी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हैव अ वेरी क्लियर स्ट्रक्चर्स, हैव प्रॉपर एग्रीमेंट्स इन प्लेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, प्रोफेशनल से कंसल्ट करो और इन्वेस्टर लाने से पहले अपने स्ट्रक्चर्स प्रॉपर करो, तभी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा जब उसको कुछ क्लियर विजन मिलेगा। अब एक इन्वेस्टर था,
उसका एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से चल रहा था, एक पार्टनरशिप से चल रहा था, कभी बिलिंग इधर हो रही है, कभी बिलिंग उधर, वो कह रहा है टर्नओवर कितनी है, वो इसकी बताऊं कि इसकी बताऊं, सो यू आर लॉस्ट। और इन्वेस्टर आपकी बहुत देर बकवास नहीं सुनेगा, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, उस टाइम को आपको इनकैश करना है, अभी सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अभी रिसेंटली ऐसा देखा, हाँ, शार्क टाइम में, हाँ, जो मैंने देखा कि एक ही फाउंडर है दो अलग अलग जगह पे, जो आपने बताया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली दे हैवंट गॉट इन्वेस्टेड। हाँ, वो नहीं होगा क्योंकि आप लॉस दिखोगे, और आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा एक्सप्लेन करना। तो दैट्स व्हाई you need professionals, you need people like us who will guide you well, who will help you reach the investors, pitch the investors, have proper documentations, and then definitely आपके आइडिया में दम है और आप में दम है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, and people are getting their successes. ओके, अगर मान लो कोई बिजनेस है, ये तो इन्वेस्टर की बात होगी जो मिल जाएगा। मान लो कोई बिजनेस है जो कि सक्सेसफुल चल रहा है, दे आर रनिंग गुड, अगर वो आगे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, वेरी गुड, उनका क्या क्या प्रोसेस? वेरी गुड, वेरी वेल क्वेश्चन आस्क। एक तो हो गया स्टार्टअप कल्चर, एक हो गया कि बिजनेस चल रहा है उसको वो स्केल अप करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं फंड्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या वो भी कुछ इस इकोसिस्टम का यूज कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, आप लोन भी ले सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं आप कैसे कैसे फंड्स अरेंज कर सकते हो, फंड्स अरेंज करने में एक सोर्स होता है लोन ले लो आप बैंक से, बट लोन्स अगर आपको लेने हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी, यू माइट हैव, यू माइट नॉट हैव, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। दूसरा है इक्विटी डाइल्यूशन, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है कि आप अपनी इक्विटी का परसेंटेज डाइल्यूट करो। मतलब अगर आप इतने के मालिक हो, 100 रुपए के मालिक हो, आप कहोगे भैया ये 10 रुपए का शेयर तू ले ले, आज से मैं 90 का मालिक हूं और इस 10 रुपए के शेयर के बदले में पैसे दे दे क्योंकि मेरा बिजनेस इतना तो वैल्यूएशन क्रिएट कर चुका है, ठीक है? तो ऐसे इन्वेस्टर्स इक्विटी परचेज करके इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा रास्ता होता है आप पब्लिक में आईपीओ लेके आओ, आप लोगों से पैसा उठाओ। वी हैव सीन दीस डेज वी हैव प्लेथोरा ऑफ आईपीओस। आईपीओस क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एक दूसरी टर्म्स होती है एफपीओस, व्हिच इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। आप मार्केट में एक बार भी पैसा ले सकते हो, आप मार्केट से बार बार पैसा भी ले सकते हो। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? Difference is when you are coming for the very first time, that is called IPO. When you are coming for the second time in the market, that is called further public offering, that is FPO. Got it. तो आप मार्केट से पैसा उठाओ, आप पब्लिक से पैसा उठाओ, आपका आइडिया अच्छा है तो पब्लिक आपको पैसा देगी, एंड विच इज अगेन अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर यू। आपको उस पर कोई ब्याज भी नहीं देना। अगर आपको दुनिया पैसा दे देती है तो उस पर आपको कोई ब्याज भी नहीं देना। इट्स अ जीरो इंटरेस्ट फंड फॉर यू। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आईपीओ में आप लोग इसीलिए लिस्ट करते हैं जिसमें आपको फंडिंग मिलते हैं, फंडिंग मिल जाती है, और जिसमें कोई आपको कोई लोन भी नहीं देना। हाँ, तो देन क्वेश्चंस कम कि लोग पैसा देते क्यों हैं? जब उनको इंटरेस्ट नहीं मिलना तो लोग पैसा देते क्यों? इन्वेस्टर पैसा लगाता क्यों है? बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पीपल माइट बी हैविंग, योर ऑडियंस माइट बी हैविंग इन क्वेश्चन कि मैं अपने पैसे उस बंदे को क्यों दूं जो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा? इससे अच्छा मैं पैसा एफडी में रख दूंगा। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको पता है मेरे को इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, जब मैं इसको पैसे दूंगा, इसका बिजनेस आज इस लेवल पे है, कल को ये बिजनेस 10x मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, या इस शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो चीज आज मैंने 100 रुपीज की परचेज करी है वो 200 की हो जाएगी, और वो मेरी वेल्थ क्रिएशन है। तो इसलिए वो आपके साथ जुड़ता है ये सोच के कि मेरा पैसा बढ़ेगा। और इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, ये तो रिस्क रिवॉर्ड है, ये तो बिजनेस एक्यूमेन और एक कमर्शियल एंगल है जो बहुत अच्छा भी प्ले करता है और बहुत नेगेटिव भी चला जाता है। तो ये रिस्क है आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके, जितना मुझे सिंपली समझ आया, बिजनेस जैसे कि आपने अगर आईपीओ रिलीज कर दिया तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, जो कि कंट्री से आएगा, आम आदमी लोग, रिटेल इन्वेस्टर से आएगा, हाँ, लोग जो खरीदेंगे, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी उस पैसे से आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड और कर सकते हो, और उस एक्सपेंड से ही आपका शेयर मार्केट में आपका प्राइस वैल्यू बढ़ता है। तो इसमें दो चीज है, एक तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे, तो इसमें क्लियरिटी जितने मुझे समझ आ रहा है, ओके, आईपीओ को बिफोर रिलीज करना इज अ गुड पार्ट for the founders, right? For the businessmen, for the founders, for the companies, you can say like this, right. Yeah, true. And इस केस में सेम सिनेरियो में मैं उसका ऑपोजिट अगर बात करें, जो बिजनेस जो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो you have to choose the right product.
और राइट कंपनी जहाँ पे आप अपने पैसे दे रहे हो उसको वो कितना ग्रो करा सकता है और उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। तो बिजनेस एक्यूमेन है, आप कितना कमर्शियली उस चीज को समझ पाते हो। कई बार हम कुछ चीजों को समझ भी नहीं पाते, हो सकता है उसमें बहुत प्रोडक्टिव दम हो बट इन्वेस्टर को नहीं समझ आया। चलो ये तो नहीं समझ आया, राइट। चलो ये तो हो गया सक्सेसफुल बिजनेस का। मुझे आप एक बार ये बताओ, जो बिजनेस फेल होते हैं उनका मेन कारण क्या होता है ज्यादातर? वेरी ट्रू। बिजनेस फेल्स के मेन कारण मैं फिर से हाईलाइट करूंगा। कई बार आपका प्रोडक्ट मार्केट रीच नहीं कर पाता। जो आपने सोचा था मेरा प्रोडक्ट कैसे चलेगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे चलेगा, वो नहीं चल पाया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर क्या बहुत सारे पार्ट्स में 24/7 करके स्टोर्स खुले थे गॉडफ्रे फिलिप्स के। राइट। ये सारे शट डाउन हो गए सडनली। दे आर, इफ यू विल नॉट फाइंड दोज ऑपरेटिव नाउ। व्हाट वाज द रीजन? जबकि मुझे ऐसा लगता था, ये तो मुझे पता नहीं लगा अभी, मतलब यू विल सी नो 24/7 फ्रॉम लास्ट 4 months. It is like 4 months, 5 months back. अच्छा, all shut down, totally overnight shut down. What was the reason? Reason was the company was running into losses. There was 936 crore loss because of this division. अच्छा, Godfrey Phillips is into tobacco business majorly, cigarettes. But उनका ये एक division था, and Modi, the younger one, was not in favor of closing this business. Even he filed his writ in state court, and then further it was Saket court removed that order. Reverse orders were passed that if business is running in losses, you have to shut down. Two brothers, one of them was in favor of shutting down, and other was like, no, Modi's versus Modi, and they were not in favor of closing this business. उनको लग रहा था आज नहीं चलेगा, but ultimately it was running into losses. तो they decided that कि अब इसमें अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया तो it's again a financial burning. तो to avoid this, they took a decision, board took a decision कि we will close overnight all these stores. तो failures क्यों हुए? कि आपका मार्केट में प्रोडक्ट रीच नहीं हो पाया। एक रीजन यही होता है कि आपने स्केलेबिलिटी सोची थी, आपने स्टोर्स खोलने में बहुत पैसा खराब कर दिया और वो नहीं चल पाया। अब उसका और डीपर एनालिसिस किया गया कि क्यों नहीं चल पाया। ये स्टोर फेमस थे ओवरनाइट डिमांड्स को पूरा करने के लिए, कि अगर आपको 12 बजे भी दूध चाहिए तो आप 24/7 पे जाके ले आओगे। बट एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या हुआ, एक नया इकोसिस्टम बन गया, जोमेटो, ब्लिंकिट, इमीडिएट डिलीवरी वाला। अब मेरे को पता है, मेरे को 12 से 1 बजे अगर कुछ इमीडिएट नीड्स हैं तो 15 मिनट मेरे घर पे आ रही है, तो मैं 24/7 पे विजिट नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा था, क्लियरली वो डिमांड कम हो रही थी, फुटफॉल कम हो रहा था 24/7 पे। जिसको सिर्फ थोड़ी देर घूमने बाहर जाना है, प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, वो 24/7 पे खाने पीने जा रहा था। बट अल्टीमेटली जिसको एक्चुअल में नीड थी, वो अपनी नीड्स को अल्टरनेटिव इको प्लेटफॉर्म सिस्टम से पूरा कर पा रहा था। तो जब वो डिमांड सप्लाई का मिसमैच आ गया, जब बिजनेस खोला तब ऐसा कोई इकोसिस्टम मार्केट में नहीं था, बट उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं, वो आपको कई बार हिट करते हैं। तो बिजनेस हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स। तभी कई बार आप देखोगे बिजनेस एक बिजनेस नहीं होते, उनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। तभी आज ये नहीं चल रहा तो टोबैको तो चलेगा ही, सिगरेट्स इज रनिंग गुड, तो उन्होंने इसको फिर शट डाउन कर दिया। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। कई बार हम अपनी गलती से अपने बिजनेस को फेलियर करते हैं, जैसे कि नॉन कंप्लायंसेस जो मैंने पहले टच किया था आपके साथ। आपका स्ट्रक्चर पुअर है, आपने इन्वेस्टर के साथ चिटिंग करी, आपने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि जान के लॉसेस दिखाए हुए हैं, फिर अथॉरिटीज जब उस पर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, पता चलता है ये तो फ्रॉड हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं, सत्यम पूरे का पूरा खत्म हो गया। इट्स अ ओल्ड एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में क्या करते हो आप, अपनी छोटी गलतियों की वजह से, नॉट बीइंग फुली ट्रांसपेरेंट, ट्राई टू चीट द ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई अवे द कंप्लायंसेस, लीड्स यू फेलियर्स। और ये कंट्रोलेबल फेलियर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते थे। ब्लिंकिट खुलेगा, जोमेटो खुलेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये आपके इंटरनल फैक्टर्स थे। तो वी ऑलवेज से कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस बी ट्रांसपेरेंट। 1 रुपया कम कमा लेना, बट बी ऑनेस्ट टू योर नेशन, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एंड दिस विल हेल्प यू ग्रो। मोर गवर्नेंस कंपनीज आर ग्रोइंग बेटर देन नॉन गवर्नेंस कंपनीज। आपके चाहे घर हो, चाहे आपका देश हो, चाहे आपकी कंपनी हो, इफ यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव रूल्स, you have that ecosystem which can control things, it's going to grow. आपकी आइडिया इतने स्ट्रांग होना चाहिए, इंक्लूडिंग दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ट्रू। एवरी सिंगल थिंग आपको एक बिजनेस बनाने के लिए या अपनी कंपनी को या अपनी छोटी एक स्टार्टअप को भी ग्रो करने के लिए वो होना चाहिए। एंड जितना जो अगर देखा जाए ऑल ओवर सबसे ज्यादा फेल होने का कई सारे रीजन होता है। देयर इज अ 2 रीजन इज अ मेन, वन ऑफ द मार्केट का
ओके, एंड सेकंड इज द कंप्लायंस, बिकॉज़ कंप्लायंस में अगर लॉस हुआ तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यू आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, योर बिजनेस you surrounded yourself yeah completely, right? Completely, your businesses are on stake. If your foundation is not properly taken care of, your business and I think compliance is under management. Yes, true. क्योंकि शेयर होल्डर, अगर मैं आप थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ, जो शेयर होल्डर अपना पैसा देता है, मालिक तो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, बट उसका सारा मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में होता है. इन कंपनी फॉर्मेट बोर्ड हैज टू टेक डिसीजंस, and if board is taking a wrong decisions, they are doing dishonesty with all the stakeholders in the market. Either it's your supplier, your customers, your shareholders, XYZ, anything whom you are dealing with. Right. Even environmental factors plays a very important role. आप उनके साथ भी injustice कर रहे हो. तो आपको you have to be honest, because जब आप मार्केट में बिजनेस करते हो, you have to ultimately pay back to society. तो आप सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हो, then society is not going to spare you. तो might end up in failures. ओके, इसमें जो बिजनेस करते हैं, व्हाट आर द मिथ अबाउट द फाउंडर्स और बिजनेस फेल का? या मिथ्स, आई विल से मिथ्स होता है कि हमें लगता है कि बिजनेस हमारा कप ऑफ टी ही नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे को जॉब ही करना है, एक कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, एंड वो लगता है कि बिजनेस मैं कर ही नहीं सकता. जबकि ऐसा नहीं है. एवरीबडी हैज इट्स ओन यूनिक कैपेबिलिटीज. They can, but they have to build confidence in itself. वो कई बार lack of confidence आपको एक एंटरप्रेन्योर, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने से रोकता है, और आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा ही होगा तभी मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन पाऊंगा. ऐसा नहीं है. We have lot of examples. Look at the examples of Amit Jain. He's a founder of Car Dekho, Insurance Dekho, and created a good brand. He was a very simple background person, not having that much investment, but धीरे धीरे he convinced the investors, और आज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेसेस. ठीक है. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि द मिथ कि सिर्फ बड़ा बंदा बिजनेस बना सकता है, ऐसा नहीं है. और ये तो काफी हद तक खत्म भी हो गया इंडियन सोसाइटी में, बिकॉज हमने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स को बनते देखा है ग्राउंड से और बहुत ऊपर तक. बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं, और उसी का रीजन है कि ये एग्जाम्पल्स हौसला देते हैं हमारी यंग जनरेशन को कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं. चलो, आप वर्क करते हो कंप्लायंस में, कंप्लायंसेस में, राइट? या अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कितने सारे ऐसे बिजनेस मतलब फाउंडर के लिए या स्टार्टअप के लिए कितना चांसेस है आने वाले टाइम में? मैं कहूँगा बहुत अच्छा इकोसिस्टम है. इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वी कैन से. और जितना कंज्यूमर बेस इंडिया में बढ़ा है, उतना शायद वर्ल्ड में आफ्टर चाइना कहीं नहीं है. एंड बाहर की कंपनीज डाइंग टू लव एंड इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर बेस. दैट इज व्हाट आवर एसेट इज. इवन बाहर की कंपनी इंडिया में आना चाहती हैं और ग्रो करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बेस बहुत बड़ा है, और किसी भी सेल प्रोडक्ट वाली कंपनी को मार्केट बेस में कंज्यूमर चाहिए होता है. तो इंडिया से बड़ा कंज्यूमर कहीं नहीं है. और अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, एडवाइजेस चाह रहे हो, तो वी आर देयर टू हेल्प देम आउट. आप बिल्कुल कंसल्ट करो, अपने एंटिटी टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, अच्छे से बिजनेस को प्लान करो, तो देयर हाई चांसेस आने वाले सालों में इंडिया में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगी. और मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन जो इंडिया की एक स्ट्रेंथ है, एक इंडिया की मेजर स्ट्रेंथ है. ये जो आपने बोला था कि किसी से कंसल्ट ले लो, हाँ, ओके, फॉर कंप्लायंस, हाँ, क्या ये चीज़ हम किसी और से भी बात करके भी तो ले सकते हैं? एरिया एक्सपर्ट, देखो हर एक काम आप नहीं कर सकते. नहीं, आई मीन मीनवाइल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी नोन में होते हैं, व्हेन यू आर हैविंग गुड नेटवर्क. हाँ, उनको इस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम हाफ नॉलेज इज मोर रिस्की देन नो नॉलेज. वो हिंदी में सेइंग है, अज्जल जगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान ज्यादा छलकता है और पता कुछ होता नहीं है, एंड दे एंड अप इन रॉन्ग, आपको गलत गाइड कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं, एंड यू लीड अप इनटू फेलियर्स. तभी एक प्रोफेशनल, हर एक एरिया का अपना एक प्रोफेशनल होता है, उसको उसकी अच्छी नॉलेज होती है. बात पे बोलते हैं कि जितना मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल. फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रू. अगर अच्छे कोई अच्छा इनकम करते ना, दे हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर. हाँ, ठीक है. इवन बैंक आल्सो प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एडवाइजर. ट्रू. एंड यू मीट पीपल, यू टेक गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल. जरूरी नहीं है कि आप हर एक बार पेड प्रोफेशनल सर्विसेज लोगे. समटाइम बिकॉज आपके पास ऐसे अच्छे लोग हैं, और इंडिया में अभी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड नहीं हुआ कि आप किसी के पास जा रहे हो और वो आपसे मीटिंग के पैसे ले रहा है.
स्पेशली लीगल सिस्टम में। ऑल्दो वी हैव सम वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल्स या जो आपसे पर मिनट के चार्ज करते हैं, बट अभी बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल ऐसे हैं जो अभी ऐसे चार्जेस नहीं लेते। आप उनसे बात करो, अपनी क्वेरीज रेज करो, उनसे बेटर टाइम लो, उनसे एक मीटिंग करो, आपको समझ आए तो आप आगे बढ़ो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट ऑलवेज हैव अ एडवाइस बिफोर टेकिंग मच डिसीजंस। चाहे वो आपका प्रोडक्ट कमर्शियल माइंडसेट का हो, क्योंकि बिजनेसमैन को कई बार लगता है कि कंप्लायंसेस मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा काम है धंधा करना, मैं धंधा बढ़ाऊंगा। धंधा बढ़ाओ, आपका काम है, आप करो, हु इज स्टॉपिंग यू, बट स्ट्रक्चर्ड में रह के करो। अगर स्ट्रक्चर से बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। So, what are the best advice you would give to the startup founder? I'll say there are although many advices, but the best advice is कि whenever you are planning something, have professionals with you, have a good team, good network, good partners, good associations, because many minds, many outcomes, many ideas, and then you are the final authority to decide the things. तो कभी भी आप कुछ भी plan कर रहे हो, always discuss this first. Either in your family, friend circle, whatever you want. But don't straight away jump to conclusions. Have all the angles analysis properly done. Also, I would say try with the multiple people. Try with the multiple people. Yeah, talk about even your ideas. Google runs something, they also start with the beta version. They don't come out with the final things because they know there are many errors which they are missing. There are many aspects they are missing. So you have to analyze every one aspect. कोई चीज बाहर बहुत अच्छी चल रही हो सकती है, आप वहां से आइडिया कॉपी करके लाके इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, शायद ना चले। There are failures इस तरह के होते हैं, और हुए हैं इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स इससे फेल हुए हैं। उन्होंने बाहर से आइडिया कॉपी किया, they try to copy execute here, unfortunately मार्केट पल्स एक एंटरप्रेन्योर को समझ आनी चाहिए। अगर आप मार्केट पल्स को नहीं समझ पा रहे, then you may end up in failures। जैसे जब कोविड था तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए थे, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स वाले बहुत सारे आ गए थे, एंड बायजूस वन ऑफ देम। बायजूस ने कितना अच्छा बिजनेस किया, कहाँ गया, बट नॉन कंप्लायंसेस फेल्ड, आज जीरो, खत्म। कहाँ $1 billion कंपनी बन चुकी है। I told you in the beginning as well that compliance के जब की बात आते ना, you have to surround yourself। आप जितने भी बड़े कंपनी हो ना, चाहे वो पेटीएम क्यों ना हो, once you do not have a compliance, आप हो सकता है बिजनेस अच्छा कर रहे हो, यू आर गोइंग गुड, ओके, यू आर ग्रोइंग, बट वंस इस आपका कंप्लायंस की बात आती है ना, आपकी बिजनेस उतनी तेजी से उससे ज्यादा, मतलब ऐसे पूरा नीचे जाएगा। बायजूस इज बिगेस्ट एग्जांपल। स्टडी द फेलियर्स ऑफ बायजूस, यू विल अंडरस्टैंड कि जहां फाइनेंशियल्स के साथ छेड़खानी करी, गलत चीजें डिस्क्लोजर्स पे डाल दी, आपकी इतनी बड़ी ग्रोइंग कंपनी, आपने मार्केटिंग गलत करनी शुरू कर दी, आपने गलत कमिटमेंट्स कर दी, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बना दिया, एम्प्लॉयज के ऊपर गलत प्रेशर बना दिया, आपने मतलब एक इतना ज्यादा कमर्शियल कर दिया एजुकेशन को कि आप एसेंसी भूल गए अपने बिजनेस की, एंड उसके ऊपर से फिर आपको अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए आपने बुक्स गलत दिखानी शुरू कर दी, आपने नॉन कंप्लायंसेस करने शुरू कर दिए, एंड देयर कम्स द बिगेस्ट फेलियर्स। अब बायजूस के पास कितने मंथ्स तक तो अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, जबकि $1 billion कंपनी बन चुकी थी बायजूस। So that's important। So ये learning, failures are learnings। और एक सबसे बड़ी ब्यूटीफुल लाइन बोलना चाहूंगा कि हर कोई एंटरप्रेन्योर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन जाता, हर कोई एलोन मस्क फर्स्ट टाइम में नहीं बन जाता। There are multiple failures which makes you learn, and if you quit in this learning process thinking that you are a failure, then it's again a biggest mistake। I think जितना मैं समझता हूँ, फर्स्ट यूनिटी आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बहुत जरूरी है। आपकी अच्छा इंसान इन द एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस। ओके, इफ यू आर लाइक, अगर आपको ये लगता है कि मैं बिजनेस में जम करके लूटूंगा, तो यू कैन ऑब्वियसली, ओके, यू विल नेवर नॉट अ गुड सक्सेस पर्सन। या ट्रू, आप लॉन्ग टाइम तो टिक नहीं सकते हो। ओके, सो एक अच्छा इंसान बनो, लोगों के लिए काम करो। ऑल द टाटा का बिजनेस की बात करें, बिल्कुल, ओके, जितने सारे प्रोडक्ट बनाए, इट्स फॉर पीपल, ओके, एंड इट्स वर्क ओनली द रीजन, ओके, दे हैव ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज दे वर्क फॉर पीपल। अगर लोगों को क्या है कि आजकल की जनरेशन में पैसे के पीछे भागते हैं, एंड दे क्रिएटेड समथिंग क्रेजी एंड जस्ट ट्राई टू मेक पीपल लाइक हार्मफुल, एंड इवेंचुअली फॉर व्हाइल दे कैन फेल, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डाउन लाइक they lost everything। True। Okay, फिर उनको ये तब भी उनको रियलाइज नहीं होता, but you have to understand that, okay, ये the nature is always give to them who did something good to the nature।
True. Very well said. Business, as I said, mentioned earlier, Yeah. you have taken from society and you have to give it back to Right. society. And if you think it's all for you, you are mistaken. एक प्रोविजन बता देता हूँ. कंपनीज एक्ट में एक बड़ा बढ़िया प्रोविजन है that we call CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. इंडिया में ये बहुत अच्छा प्रोविजन है कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको 2% का प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी को वापस करना है. Okay. It has to be some education. वो लिस्ट है, हमारा शेड्यूल है, और शेड्यूल के हिसाब से आपको पैसा ये उसमें है, कंपनीज एक्ट में है. ये हमारे इंडिया में प्रोविजन है एंड ब्यूटीफुली इंडिया में ये इम्प्लीमेंट भी है. हाउ मेनी परसेंटेज भी फाउंडर और कंपनी सर 2% नहीं, जिसके पास प्रॉफिट है, जो स्ट्रगलिंग कंपनी है, लॉसेस मेकिंग कंपनी है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता. अच्छा, okay. एक थ्रेशोल्ड के बाद जिनका इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आ रहा है उनको सिर्फ 2%, which is a very slight profit, you have to repay it back to the society. Okay, and it's going wonderful and people love doing that and companies are taking care of it because अगर आप नहीं करोगे there have again some penalty provisions which you have to take care. Okay. हाँ. But if those applicable only to those companies which are running some handsome businesses, those who have profits from last 3 years and all those things, we are taking it should not be hardship. But yes, ultimately business is nothing but something give and take with the society. So if you have taken that resources, material, the environment, everything, you have to pay it back to society. Okay. I think we talk a lot. काफी सारे बात करें हमने. True. And I hope कि ये हमारे ऑडियंस को अच्छा लगे. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. It was a lovely session. Thank you.